Good evening, everyone. Good evening, everyone. Am I audible? Good evening, sir. Yes, sir. Good evening, sir. Okay. Sorry, so sorry for the delay. I was stuck in a traffic. Okay. So today we'll be covering two topics. One is syllogisms, and another one is blood relations. Okay. So both of them are a very important topic, and both of them are a very scoring one. Now, why I'm saying scoring one? Because it is very easy to understand and very easy to score, and you get definitely one question from these topics. So it is type of a type of statement conclusion based questions. Okay, statement conclusion based. When I'm saying statement conclusion means certain statements would be given. From that, certain conclusions you have to draw. Okay, so say when I say let's say I did not go out to play today. Okay, so when I say I did not go out to play today, that means what can I conclude out of this? It may be like I was lazy, or it may be like it was raining, or it may be like say nobody was there to play. Okay, so many conclusions you can draw from a given statement. So statement is nothing but, in syllogisms, it describes certain conditions. It describes certain conditions, okay, or how the objects or sets are related. यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ sets are related. एक certain condition है जिसके थ्रू हम कुछ relation describe करते हैं. So for example, all pens are pencils. Okay, so this is a statement which describes the relation between pens and pencils. How are they related? Okay, now when I say relation, all pens are pencils, this is a statement. So you may ask, सारे pen pencil कैसे हो गए? So this sounds absurd, so don't panic. जो भी statement में दिया है, you have to assume them as facts. मतलब यही सही है मान के चलना है. Okay, forget all the other universal truth. If I say all suns are planets, you have to consider that as truth. अगर statement में दिया है तो. Okay, so statement में जैसा दिया है हम लोगों को वही सच है मान के चलना है. Okay, so from statement there will be certain conclusions. Okay, certain conclusions. अगर सारे pens pencil है तो can I say अगर मैंने बॉल पेन लिया तो बॉल पेन भी तो पेंसिल कहलाएगा. Do you agree on this? Yes, sir. So when I say all Indians love cricket, so can I say people of Mumbai love cricket? Understood what I'm trying to say? Yes. This is statement, this is conclusion. When I say all Indians love cricket, so people of Mumbai love cricket. Understood? So this is
a statement based conclusions. Whenever whatever is given in the statement, assume that as true, and on the basis of that you draw certain conclusions. So this is just an example. Okay, so how the practical questions look like. So the practical questions look like something like this. You need to understand some basic statements. The statement you have to note it down, everyone. Some x are y. Please note it down, everyone. The first type of statement, that is some x are y. Now imagine for a moment, when I say some x are y, so consider this as a set and this is another set. Can you try to relate this to the two sets through a Venn diagram? Please try to relate this to a Venn diagram. Sir, So- big circle under this another circle. Something like this. No, sir. Inside that. Okay, inside something like this. Yes, sir. Some portion of x are y. Now look at this, the first diagram that I have drawn here. It says some portion, देखो, some portion of x should be y. That is the meaning. ठीक है? If you look at this one, the intersection वाला part, ये x के ही part है, right? Which is also belonging to y. So can I say Yes. some portion of x belongs to y? In the second diagram also, some portion of x belongs to y. देखो, हमें sum की तरफ से relation देखना है. Okay? X to y. अब y की तरफ से क्या है? I don't care. Okay? I have to look at the relation from x to y. So I say some x should be y. So you have to draw both the diagrams always. Clear on this, everyone? Yes, sir. So can you combine these two? मतलब दो अलग अलग diagrams ना बना के क्या मैं एक ही डायग्राम बना सकता हूँ? ये जो y का सर्कल है, अगर मैंने y का सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, तो डोंट यू थिंक दैट these two diagrams have the same meaning? Some portion of x belongs to y. ऐसा भी हो सकता है या तो ऐसा हो सकता है. Okay, so both have the same meaning. So I'm trying to combine both the diagrams inside one diagram. तो x और y का रिलेशन ऐसे डायग्रामेटिकली शो कर सकते हैं या तो ऐसे भी हो सकता है. ऑलवेज रिमेंबर दिस वन. फॉर एग्जाम्पल, सम कैट्स आर डॉग्स. तो जब मैं सम कैट्स आर डॉग्स बोलूंगा, मुझे कैट्स से डॉग का रिलेशन पता है. तो आई से कैट्स के कुछ पोर्शन डॉग्स हैं, या तो डॉग्स के रिलेशन ऐसे भी हो सकते हैं सर्कल. आर यू गेटिंग दिस? हाउ आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ दिस डायग्राम? Yes, sir. सर वो हमने हाफ बाहर सर्कल निकाला है, वो भी कंडीशन सेटिस्फाई कर सकते हैं क्या? कौन सा सम? डॉग वाला बाहर निकाला है एक सर्कल, हाफ इन द सर्कल. और हाँ, मतलब कुछ कैट्स के कुछ पोर्शन डॉग्स होने चाहिए. हाँ, बस इतना है. पूरा का पूरा कैट्स नहीं चाहिए. हाँ, कैट्स के कुछ पोर्शन डॉग्स होने चाहिए. अगर दोनों में इंटरसेक्शन है ना, तो कुछ पोर्शन जो कैट्स में है वो डॉग्स भी हैं. दैट इज द मीनिंग. क्लियर यहाँ तक? नाउ व्हाट कैन वी कंक्लूड आउट ऑफ दिस? इसमें से क्या कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं? अगर कुछ कैट्स डॉग्स हैं, तो कैन आई से बाय डिफॉल्ट some dogs are cats? क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ some dogs are cats? Look at this. Some No, sir. portion- All dogs can be cat, no?
मतलब both हाँ। can be true. देखो, मैंने बोला है कि सम डॉग्स आर कैट्स, कुछ डॉग्स तो कैट्स है ही. इज इट ट्रू? Yes, sir. Yes. हाँ. इफ आई से ऑल डॉग्स आर कैट्स, क्या ये सही है? No, sir. Both आंसर इज can be true, na sir? हाँ, आंसर इज नो. ऐसा क्यों? यहाँ पे सारे डॉग्स कैट्स हैं, लेकिन यहाँ पे सारे डॉग्स कैट्स नहीं है. मतलब ये कंफर्म नहीं है. दिस इज नॉट कंफर्म. ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जब हमने सम कैट्स आर डॉग्स का सर्कल बनाया तो उससे डॉग्स के दो पॉसिबिलिटीज आए, जिसमें से एक कंडीशन ऐसा है सम डॉग्स आर कैट्स जो दोनों में सेटिस्फाई हो रहा है. ओके. ये जो डॉग, ये वाला अगर मैं डॉग्स का सर्कल लूं तो इनसाइड डॉग का सर्कल इफ आई कंसिडर एनी पोर्शन, ये बाय डिफॉल्ट कैट्स के अंदर आएगा. से फॉर एग्जांपल पुणे कम्स इनसाइड महाराष्ट्र, है ना? तो पुणे का कोई भी कॉर्नर ले लो, पुणे का कुछ पोर्शन ले लो, वो बाय डिफॉल्ट महाराष्ट्र में आएगा. दैट इज द मीनिंग. अंडरस्टूड नाउ? सो Sir. ऑल डॉग्स आर कैट्स, ये कंडीशन फॉलो नहीं होता है क्योंकि ये हमें कंफर्म्ड पता नहीं है. वी डोंट नो व्हाट, वी आर नॉट श्योर अबाउट दिस रिलेशन. अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. देखो, ऐसे डायग्राम बनाओ ना. देखो, इफ द कंडीशन इज सपोज टू बी ट्रू, इट हैज टू बी ट्रू इन ऑल द डायग्राम्स. जितने भी डॉग्स के डायग्राम्स है ना, हर डॉग्स के डायग्राम्स में ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. देन ओनली यू कैन से द कंक्लूजन इज ट्रू और कंक्लूजन फॉलोज. ओके. सेकंड वन इज ऑल एक्स आर वाई. एग्जाम्पल. अच्छा, पहले डायग्राम बनाते हैं. ऑल एक्स आर वाई मतलब सारे के सारे एक्स वाई हैं. ये कैसे बनाओगे? हाउ विल यू ड्रॉ दिस डायग्राम? X inside Y. ए के पास 50 रुपए है और बी के पास 100 रुपए है. मतलब ए के पास जितने पैसे हैं वो बी के पास तो है ही. अगर मैं ऐसे बोलूं तो भी तो मेरा स्टेटमेंट वैलिड है. ए के पास जितने पैसे हैं वो बी के पास भी है ना? सो इट मे बी इक्वल और लेस, तभी ऑल एक्स आर वाई होगा. ठीक है. अब अगर आप मैथमेटिकली सोचें तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस. मे एक्स मे बी लेस और मे बी इक्वल्स टू वाई. ठीक है. दिस इज ऑल एक्स आर वाई. ओके. नाउ देखो, इसको अगर मैं मैथमेटिकली देखूं ना तो सम पोर्शन ऑफ एक्स शुड बी वाई, कुछ ऐसा दिखेगा. नाउ can I plot and let me give you an example. Say all, let me write the same with the all statement. All cats are dogs. So try to draw the diagram for this. All cats are dogs. पहले तो दोनों इक्वल हो सकते हैं. सारे कैट्स डॉग्स हैं, इक्वल सर्कल. या तो सारे के सारे कैट्स डॉग्स हैं. डू यू एग्री नाउ ऑन दिस? Yes, sir. Yes, sir. So the conclusion is, what are the conclusions that I can
ड्रॉ. करोगे that will be by default faster. Yes or no? Yes. Yes. Means B is the subset of A, हाँ then C is the subset of B, then C is also subset of A. हाँ मतलब Like that. देखो, अगर A is a subset यहाँ पे some dogs are cats ऐसा होगा ना, मतलब all cats मतलब all cats are dogs, then some कैसे, मतलब दोनों सही होगा. some cats are dogs, ये तो सही है ही. तो some dogs are cats ये भी सही होगा, क्योंकि देखो इसमें क्या बोला है कि कुछ कैट्स डॉग्स होते ही हैं. मतलब कैट्स और डॉग्स में कुछ कॉमन है ना. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कैट्स भी है डॉग्स भी है. तो बाय डिफॉल्ट आई कैन से जैसे अगर कंपेयर करने को आए, मतलब यहाँ पे आपने लिखा सम कैट्स आर डॉग एंड ऑल कैट्स आर आल्सो डॉग, तो दोनों में मतलब दोनों तो ट्रू हो गए ना फिर तो. हाँ, ये इसको स्टेटमेंट बोलते हैं, इसको कंक्लूड. इसी स्टेटमेंट के बेसिस पे मैंने ये सोचा कि अगर सारे के सारे कैट्स डॉग्स होते ही हैं तो कुछ कैट्स बाय डिफॉल्ट डॉग्स होंगे. अगर मैं कुछ कैट्स लूं, Yes, sir. पूरा का पूरा कैट्स डॉग्स हैं, तो कैट्स के कुछ मैं सबसेट ले लूं तो बाय डिफॉल्ट डॉग्स के अंदर आएगा. सर Not वो getting- ट्रू है, उसमें मैं एग्री हूँ, बट जब ऑल है तो फिर सम की क्या मतलब जरूरत है. हाँ, मेरा ये- मतलब ये देखो ऑल है तो बाय डिफॉल्ट सम आएगा ही आएगा. ठीक है, ये कब मैं इसको बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि ये आपके क्वेश्चंस के कंक्लूजन में दिया रहेगा. तो पहचानना है कि ये कंक्लूजन सही है या नहीं है. गेटिंग माय पॉइंट? यस सर, वही पूछना Yes, था कि हमें कंक्लूजन फाइंड करना है क्या, मतलब उस स्टेटमेंट पर से कि उसका हाँ. क्या मीनिंग हो सकता है, मतलब क्या क्या उसका मीनिंग हो सकता है. हाँ, ये Yeah. ऐसे स्टेटमेंट्स दिए रहेंगे और कुछ कंक्लूजन्स दिए रहेंगे. ठीक है, अब यहाँ पे मैंने डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं दिया है, मैंने जस्ट एग्जांपल दिया है कि कंक्लूजन्स क्या क्या हो सकता है. ठीक है, हम जस्ट कंक्लूजन को डिराइव कर रहे हैं. वहां पे क्वेश्चन में ऑलरेडी कंक्लूजन दिया रहेगा, बस उस कंक्लूजन को देख के बताना है कि सही है कि गलत है. बस इतना ही है. ओके, सो अगर कुछ कैट्स डॉग्स हैं तो कुछ डॉग्स बाय डिफॉल्ट कैट होंगे. ओके, ये सम में ना दोनों देखो, यहाँ पे देखो, जैसे ही सम कैट्स आर डॉग्स हो गया तो सम डॉग्स आर कैट्स बाय डिफॉल्ट आ ही जाता है. मीन्स यहाँ पे भी ऑल कैट्स आर डॉग्स के वजह से सम कैट्स आर डॉग्स ट्रू हो गया, तो बाय डिफॉल्ट सम डॉग्स आर कैट्स भी ट्रू हो गया. ये दोनों सही हो गए. Conclusion number 3. Can I say all dogs are cats? Can I say all dogs are cats? Is it possible? नो सर. No. ऐसा क्यों नहीं पॉसिबल? अगर मैं इस सर्कल को देखूं, इक्वल सर्कल है. इक्वल मतलब सारे डॉग्स, सारे कैट्स अगर डॉग्स हैं तो सारे डॉग्स कैट्स भी हैं. लेकिन सेकंड वाला सर्कल देखो जो कैट का सर्कल है, सारे के सारे डॉग्स कैट्स हैं. यस सर. नहीं sir. नहीं, मतलब सारे कैट्स डॉग है ऐसा हाँ. बोल. सारे डॉग्स कैट नहीं है, फिर सारे कैट्स में भी पॉसिबल है ना, वो तो दिया हुआ है. बट सारे डॉग्स कैट नहीं है, क्योंकि अगर मैं ये डॉग का सर्कल और ये कैट का सर्कल अगर इफ यू रेफर, बीच में कुछ पोर्शन है जो डॉग्स तो हैं लेकिन कैट नहीं है. ओके, सो ये रहा आपका
सेकंड डायग्राम। स्टेटमेंट नंबर 3। हेलो सर। हाँ हाँ, इस पे थोड़ा बोलना था। इसका मतलब ये है ना, ऑल कैट्स आर डॉग्स, मतलब यहाँ डायरेक्टली मेंशन, पॉजिटिवली मेंशन किया है कि ऑल कैट्स आर डॉग्स है, और उस हाँ पे से हमने अज्यूम किया है कि ऑल कैट्स आर डॉग्स है, तो कैट्स की और डॉग्स की जो काउंटिंग वो सेम हो सकती है, हमने सिर्फ अज्यूम किया है, मतलब दिया नहीं है पॉजिटिवली, हाँ इसलिए हमने वो थर्ड वाला जो कंक्लूजन है ऑल डॉग्स आर कैट्स है, हमने मतलब रिजेक्ट किया, मतलब हाँ नहीं है। हाँ, देखो ये वाला क्यों नहीं मैंने कंक्लूजन को ट्रू, ये देखो थर्ड वाला फॉलो नहीं होगा, लेकिन देखो क्यों फॉलो नहीं होगा, सारे कैट्स डॉग्स है इतना तो मुझे पता है, लेकिन सारे डॉग्स कैट्स होंगे ये मुझे पता नहीं है। और डायग्राम से देखो सारे डॉग्स कैट्स इसमें ही एक ही रिलेशन में है, दूसरे वाले कैट के रिलेशन में सारे डॉग्स कैट नहीं हो रहे हैं, इसीलिए कंक्लूजन नंबर 3 नॉट फॉलो होता है। ठीक है, फर्स्ट 2 ही फॉलो होंगे। ऑलवेज रिमेंबर, मैथमेटिकली a इक्वल्स टू b तो b इक्वल्स टू a होता ही है, लेकिन सिलोजिज्म्स में a इक्वल्स टू b का मतलब b इक्वल्स टू a नहीं होता है। ऑलवेज रिमेंबर दैट। यहाँ पे सारे a b है, इसका मतलब a जो है मे बी लेस देन b या इक्वल टू b है। ठीक है, मतलब सिर्फ इतना देखना है, एक में जितने भी वैल्यूज है ना वो सब b में आता है, तो वो इक्वल टू हुआ तो भी आएगा, कम हुआ तो भी आएगा, दैट इज द मीनिंग। अगर सोचो, अगर मैं ऐसे लिटरली सोचूं, देखो सारे पुणे का एंटायर रीजन महाराष्ट्र में आता है ना, तो पुणे अगर महाराष्ट्र से छोटा है तो भी मैं बोल सकता हूँ कि पूरा का पूरा पुणे महाराष्ट्र में आ जाएगा। अगर दोनों भी इक्वल है तो भी मैं बोल सकता हूँ कि पूरा का पूरा पुणे महाराष्ट्र है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन इससे मुझे ये कंफर्म पता नहीं चलता है कि क्या सारे के सारे महाराष्ट्र पुणे हैं, ये कंफर्म नहीं बता सकते, लेकिन कुछ पोर्शन ऑफ महाराष्ट्र बाय डिफॉल्ट पुणे होंगे, क्योंकि पुणे है ही महाराष्ट्र के अंदर, तो कॉमन पॉइंट तो होंगे ही ना। यस सर। सम का मतलब कुछ कॉमन है, दैट इज द मीनिंग। नेक्स्ट, ये सबसे इजी वाला है, नो एक्स इज वाई। बोलो कैसा आएगा डायग्राम? अलग अलग, दूर दूर, अलग अलग सर्कल। ठीक है, सो इसका कंक्लूजन अगर मैं ऐसे बोलूं, अगर कोई नो एक्स इज वाई है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सम एक्स आर वाई? एक्स के कुछ पोर्शन वाई है, आंसर इज नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं स्टेटमेंट में, तो मैं कंक्लूजन में कैसे बता सकता हूं कि दोनों में कुछ कॉमन है? कैन आई से नो वाई इज एक्स? यस यस, दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं, तो रिवर्स वे भी ट्रू होता है। लेकिन यहाँ पे देखो ऑल कैट्स आर डॉग्स, ऑल कैट्स आर डॉग्स स्टेटमेंट है, तो कंक्लूजन में ऑल डॉग्स आर कैट्स को क्यों फॉलो नहीं किया है? ठीक है, पॉजिटिव स्टेटमेंट में रिवर्स वाला ट्रू नेसेसरी नहीं है वो, ठीक है, बट नेगेटिव स्टेटमेंट देखो दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं, डिसजॉइंट है, तो x का आप कुछ भी पोर्शन ले लो वो y में कभी आएगा ही नहीं, और y का कुछ भी पोर्शन ले लो वो कभी x में आएगा ही नहीं, है ना। सो तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र का बॉर्डर है, तो कैन आई से सम पोर्शन ऑफ महाराष्ट्र इज इन तमिलनाडु? आई कैन नॉट से दैट, राइट? लाइकवाइज सम पोर्शन ऑफ तमिलनाडु विल नेवर बी इन महाराष्ट्र। क्लियर? सो उस तरीके से आपको सोचना है, ठीक है। सो इतना ही है, और इसका एक और कंक्लूजन है, दैट इज सम एक्स आर नॉट वाई।
अगर पूरा का पूरा x में आता ही नहीं है तो x का कुछ पोर्शन ले लो, वो बाय डिफॉल्ट y में आएगा ही नहीं। पूरा महाराष्ट्र तमिलनाडु में आता ही नहीं है या तमिलनाडु के साथ कुछ कॉमन ही नहीं है, तो आप महाराष्ट्र में कोई भी पॉइंट ले लो, वो बाय डिफॉल्ट तमिलनाडु में कुछ कॉमन आएगा ही नहीं। अंडरस्टूड? यस और नो? यस सर। सर इसका ऐसा भी आ सकता है क्या, ऑल एक्स आर नॉट वाई और ऑल वाई आर नॉट एक्स, मतलब ऐसा कुछ कंफ्यूजन होता है क्या? हाँ, मतलब उसका मतलब तो वही है ना, नो एक्स इज वाई का मतलब क्या है? एक्स पूरा एक्स वाई है ही नहीं, उसका जो मतलब है ऑल एक्स आर नॉट वाई, मतलब एक ही है। हाँ, मतलब वो क्वेश्चन में मेंशन, मतलब ऐसी भी लाइन में मेंशन होता है क्या? हाँ, क्वेश्चन में जनरली ऐसे मेंशन नहीं रहता है, क्वेश्चन में ऐसा मेंशन रहेगा, तो इसलिए मैंने ऐसे स्टेटमेंट बनाया है। ठीक है, मतलब सेम है दोनों का। ओके, सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखो, पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करके देता हूँ, सो यू ऑल्सो ट्राई दी अदर क्वेश्चंस। First question is of sum statement plus all statement. When I say some actors are singers, तो sum के लिए हमारे पास दो टाइप के डायग्राम है, ये एक्टर और ये सिंगर। दूसरा डायग्राम इज इंटरसेक्शन वाला। ठीक है, तो एक्टर के कुछ एक्टर्स सिंगर्स हैं या कुछ एक्टर्स सिंगर्स हैं। ठीक है, इससे हमें ये पता चलता है कि एक्टर्स और सिंगर्स में कुछ तो कॉमन है। सारे के सारे सिंगर्स कॉमन हो सकते हैं कि कुछ सिंगर्स कॉमन हो सकते हैं। ओके, नाउ लेट अस मूव टू दी सेकंड स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट, अब देखो, सिंगर्स एंड डांसर्स के बीच में का रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। नाउ एक्टर्स को भूल जाओ भी, फोकस ऑन सिंगर्स। ऑल के लिए हमारे पास कितना टाइप का डायग्राम था? वी हैड 2 टाइप्स, राइट? सर सिंगर के बाहर लूप नहीं बना सकते हम? बना सकते हैं ना। हाँ, सिंगर्स और एक्टर्स इक्वल हो सकते हैं, या सॉरी एक्टर्स नहीं, ये डांसर्स हैं। डांसर्स इक्वल हो सकते हैं, या तो सिंगर के बाहर डांसर्स, क्योंकि सारे सिंगर्स डांसर्स या तो इक्वल हो सकते हैं या तो लेस हो सकते हैं। यू रिमेंबर दिस वन, सिंगर्स और डांसर्स के बीच में लेस देन या इक्वल टू आएगा। ओके, सो ये हो गया मेरा डायग्राम। अब बोलोगे ये वाला सिंगर्स के बाहर मैंने डायग्राम क्यों नहीं बनाया डांसर्स का? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बन चुका है, तो वापस मैं यहाँ पे बना के कोई फायदा नहीं है। ठीक है, इट विल रिमेन द सेम। नाउ लेट अस कंक्लूड, सम एक्टर्स आर डांसर्स। अभी मुझे बाकी सब भूल जाना है। जितने भी एक्टर्स हैं और जितने भी डांसर्स हैं, हर डायग्राम में रिलेशन चेक करो कि दोनों में कुछ कॉमन है या नहीं है सर, पॉजिटिव, पहला वाला पॉजिटिव कंक्लूजन। एक्टर्स और डांसर्स, ये वाला जो है ये डांसर्स के भी सर्कल है, तो एक्टर्स और डांसर्स में कुछ कॉमन दिख रहा है। अगर ये पूरा बड़ा वाला सर्कल डांसर्स है तो ये पूरा का पूरा पोर्शन कॉमन आएगा, मतलब कुछ ना कुछ तो कॉमन है हर डायग्राम में। That means the conclusion 1 follows. No singer is actor. No singer is actor. Wrong है सर। मतलब सिंगर और एक्टर में कुछ कॉमन ही नहीं है, ऐसा कैसे? So conclusion doesn't follow. Yes. Remember, positive statement तो positive conclusion. नेगेटिव स्टेटमेंट नेगेटिव कंक्लूजन, ऑलवेज याद रखना। तो मेरे दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं दोज आर पॉजिटिव, तो नेगेटिव कंक्लूजन नहीं आ सकता। ओके,
सो जब भी डायग्राम्स ड्रॉ करोगे, ड्रॉ ऑल द पॉसिबल डायग्राम्स. ओके. सो अगर कंक्लूजन ट्रू होना है तो जितने भी डायग्राम्स है सब में ट्रू होना चाहिए. किसी एक में ट्रू हो रहा है, दूसरे में नहीं हो रहा है, तो इट इज नॉट ट्रू. ओके, या डजंट फॉलो. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इस बार सम एंड सम है. गर्ल्स है ना.
और यहाँ पे सारे गर्ल्स ब्यूटीफुल बोला है, तो बाय डिफॉल्ट एक्टर्स ब्यूटीफुल में आ जाएंगे। देखो मैं डायग्राम के थ्रू बताता हूँ। ऑल एक्टर्स, ये एक्टर्स हैं, ऑल एक्टर्स आर गर्ल्स और ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। सो ऐसा हो सकता है या तो ऐसे भी हो सकते हैं, सारे एक्टर्स गर्ल्स हैं और सारे गर्ल्स ब्यूटीफुल हैं। इक्वल सर्कल भी हो सकता है ना। यस सर। तो अब कोई भी डायग्राम ले लो, अगर मैं एक्टर्स आर ब्यूटीफुल चेक करूं, एक्टर्स ब्यूटीफुल हैं, सेम सर्कल, सो ट्रू। ऑल एक्टर्स आर ब्यूटीफुल, दूसरा ब्यूटीफुल वाला सर्कल में भी चेक किया, देन ऑल्सो इट इज ट्रू, है ना। सो दैट मीन्स इट इज फॉलोड। सम गर्ल्स आर एक्टर्स, रिमेंबर हमने देखा था ना, ऑल का रिलेशन है ऑल एक्टर्स आर गर्ल्स, तो सम एक्टर्स आर गर्ल्स बाय डिफॉल्ट ट्रू होगा। अगर सम एक्टर्स आर गर्ल्स है तो सम गर्ल्स आर एक्टर्स विल आल्सो बी ट्रू। दोनों के बीच में, एक्टर्स और गर्ल्स के बीच में ऑल का रिलेशन है तो सम का रिलेशन बाय डिफॉल्ट ट्रू होता है। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वन आल्सो वेरी इजी। Sir, first one false and second one true. फर्स्ट वन ट्रू, नहीं, फर्स्ट false है, second true है। अच्छा देखो, नो डोर इज अ वॉल है तो नो वॉल इज अ डोर, ये तो बाय डिफॉल्ट ट्रू हो जाएगा, है ना। हाँ सर। फर्स्ट वन, ऑल विंडोज आर डोर्स, सारे विंडोज डोर्स हैं। एंड नो डोर, डोर और वॉल में कुछ कॉमन नहीं है, तो दोनों भी अच्छा। false है ना, तो बाय डिफॉल्ट विंडोज और वॉल्स में कुछ कॉमन आएगा ही नहीं ना। दोनों भी false। हाँ नहीं, सही हाँ बात। दोनों फॉल्स है, यस। सो नहीं, दोनों क्यों फॉल्स होंगे, सेकंड वन इज ट्रू, सेकंड वन फॉलोज। देखो डोर और वॉल में कोई रिलेशन नहीं है, कोई भी डोर वॉल नहीं है तो कोई भी वॉल डोर नहीं होंगे, सेकंड तो ट्रू है। फर्स्ट वन जो है, सम विंडोज आर वॉल्स, कुछ विंडोज वॉल्स हैं। वॉल तो रहा डोर के अंदर और डोर के बाहर वॉल, सॉरी विंडो इज इनसाइड डोर्स और वॉल आउटसाइड डोर है ना। मान लो कि ये महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र के बाहर कोई भी ले लो, लेट्स से गुजरात है, तो महाराष्ट्र के अंदर जो भी है वो बाय डिफॉल्ट गुजरात के साथ कुछ भी कॉमन में नहीं आएगा। सो सेकंड वन इज फॉल्स, यानी नॉट फॉलो। ठीक है, ट्राई दिस वन। ये ट्रू है, सेकंड में भी ट्रू, फर्स्ट वन फॉल्स। First false, second ओके। First false, second true. All trucks are flies. So ये है ट्रक्स, ये है फ्लाइज, और इक्वल भी हो सकता है ना। सम स्कूटर्स आर फ्लाइज। अब देखो ये फ्लाइज वाला जो सर्कल है ये यहाँ पे है, या तो ऐसा होगा सम स्कूटर्स आर फ्लाइज, या स्कूटर का सर्कल ऐसा हो सकता है, सम पोर्शन ऑफ स्कूटर्स आर फ्लाइज। मैंने सम जैसे लिखते हैं वैसा ही लिखा,
ऑल ट्रक्स आर स्कूटर्स, क्या सारे के सारे ट्रक स्कूटर्स हैं? नो सर। पहला डायग्राम के लिए सही है, लेकिन दूसरे डायग्राम के लिए सही नहीं है। स्कूटर्स हमारे पास दो डायग्राम्स हैं। इफ इट फॉलोज, इट शुड फॉलो इन बोथ द डायग्राम्स। सम स्कूटर्स आर ट्रक्स, इनका कहना है कि स्कूटर्स और ट्रक्स में ना कुछ तो कुछ कॉमन है ही। हमारे पास लेट अस से दिस इज ट्रक का डायग्राम, ये ट्रक और ये ट्रक, ये स्कूटर, दिस टू है ना, दिस एंड दिस, देयर इज समथिंग इन कॉमन, बट दिस ट्रक एंड दिस स्कूटर नथिंग इज इन कॉमन। तो मतलब किसी में ट्रू है, किसी में नहीं ट्रू है, तो वी कैन नॉट कन्फर्म। क्लियर? सो बोथ विल नॉट फॉलो। क्लियर एवरीवन? सो इसी लेवल के क्वेश्चंस ही आपको करने हैं। सो यू try to complete all the questions from the book. Okay, all are of similar pattern. The main important is how to draw the diagrams. just जिस दिन तुम्हारा diagrams perfect हो जाएगा, you can solve any questions on syllogism. सम हाँ, स्कूटर्स आर ट्रक्स हो सकते हैं ना? some scooters are trucks मैंने इसलिए मना किया है because ये वाला जो ट्रक का सर्कल है और ये स्कूटर का सर्कल है, इसमें कुछ कॉमन है ही नहीं। और ये वाला ट्रक का सर्कल और ये वाला स्कूटर का सर्कल में कुछ कॉमन है, कभी कॉमन है कभी नहीं है, तो इसीलिए इट इज नॉट फॉलो। अगर कॉमन हो, अगर फॉलो होना है, इट शुड फॉलो इन ऑल पॉसिबल डायग्राम्स, हर तरीके से फॉलो करना है। ओके, नाउ अगर मैंने स्टेटमेंट कुछ ऐसा लिख दिया, सम स्कूटर्स मे बी ट्रक्स, हाँ, अब जाके ये फॉलो होगा। देखो दोनों स्टेटमेंट, दोनों कंक्लूजन में क्या डिफरेंस है? मे बी, वर्ड मे बी। अब मुझे कंफर्म पता नहीं है ना, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर कंक्लूजन में ऐसा दिया है देन यू कैन से हाँ ये फॉलो होगा। बट अगर मैंने बोला सम स्कूटर्स आर ट्रक्स, इट इज नॉट नेसेसरी, सॉरी, ये कंफर्म नहीं है। ये स्टेटमेंट बोलता है कि कुछ स्कूटर्स ट्रक्स है ही, जो मुझे कंफर्म पता नहीं है, सो आई कैन नॉट कमेंट ऑन दिस, है ना, इसीलिए नॉट फॉलो। क्लियर? So I would recommend one website apart from the book that you have. ये वाले वेबसाइट में try to solve all the questions from syllogisms. ठीक है, इतना करो। It will be from basics to बोलो। चैट बॉक्स में डाल दीजिए वेबसाइट। indiabix.com है। ओके सो इसमें सर्च करो, ऐसे गूगल में सर्च करो, you'll directly get the link. Syllogisms from indiabix.com ऐसे सर्च करो, directly you'll get the link. Okay, so this website will has from basic to moderate level. डिफिकल्ट वाला नहीं मिलेगा इस वेबसाइट में, मॉडरेट तक मिल जाएगा। ओके, सो बिगिनर्स के लिए दिस इज वेरी वेरी यूजफुल वेबसाइट। ओके, सो ट्राई टू कंप्लीट द बुक। सारे क्वेश्चन सिमिलर टाइप्स हैं, सो आई एम नॉट सॉल्विंग ऑल द क्वेश्चंस। So we'll start another very small topic, बहुत छोटा सा है, will be able to cover in 30 minutes or 45 minutes or so. Topic का नाम is this. Another very very important. बहुत
हाँ पेपर हाँ, अब देखो इसमें ना सिर्फ 3 टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे. यू फॉलो दोज 3 टाइप्स ओनली. बस इतना करो, यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑन ब्लड रिलेशंस. ठीक है, वो 3 टाइप्स क्या क्या हैं दैट विल डिस्कस. ओके, बिफोर दैट प्रॉब्लम्स को स्ट्रक्चर कैसे करते हैं दैट वी विल फिगर आउट. इसे कहते हैं फैमिली ट्री. अब ट्री से पता चल गया होगा, जैसे यू हैव बाइनरी ट्री, है ना, सिमिलर टू दैट विल हैव फैमिली ट्री. नाउ फैमिली ट्री में देयर आर 3 generations. ओके, दिस इज generation number 2, ये generation number 1, this is generation number 0. 0 means your grandfather के generation, this is your father's generation, this is you. Okay, ऐसा खुद को रेफर करना है इस फ्रेम में. Okay, so generation 0, generation 1, generation 2. So when I talk about generation 2, this is you and this is your sibling. I'm drawing a line. See, एक line खींच रहा हूँ मैं ऐसे. That means it will denote that A and B are siblings. If I write something like this and there is no dotted line and they are in the same generation, means they are cousins. इसको क्या बोलेंगे? Cousin. Okay, and this is sibling. Okay, remember siblings are nothing but brother and sister. Okay, cousins are not referred as cousin brother or cousin sister. Okay, so cousin brother cousin sister ऐसा कुछ नहीं होता है. हम लोग अपने comfortable के हिसाब से we have changed that, है ना, लोकल फ्लेवर देने के लिए वी से कजन सिस्टर और कजन ब्रदर. ठीक है, बट इन रियलिटी इंग्लिश में कजन्स आर जस्ट कजन्स, नो कजन ब्रदर, नो कजन सिस्टर. ठीक है, सो एज अ वर्ड इट इज जेंडर न्यूट्रल. सिबलिंग्स अगेन, ब्रदर एंड सिस्टर वर्ड्स आर स्ट्रिक्टली यूज्ड फॉर सिबलिंग्स एंड नथिंग एल्स. ओके, नाउ नेक्स्ट इज why I am drawing this line means next मतलब पहले के generation, previous generation. So P and Q. Okay, now why I'm drawing this line indicates that A and B are sons and daughters or children of P and Q. Now when I'm writing P and Q, I'm writing inside a bracket इसीलिए just to denote that P and Q are couple. Okay, use plus sign to denote male, minus sign to denote female. Now again these are just conventions. You may change this notations or sign. Plus के जगह you can give a dot or a box. इसमें you can say a rectangle or a square that you can use just to denote male and female. Okay, so here also I'm writing P as plus and Q as minus. Clear? So I can say P is the father of A and B and Q is the mother of A and B. So in short P and Q are parents of A and B. देखो मैं family tree बना रहा हूँ अभी. ठीक है, now all the maternal relations are written on this side. Okay, मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, लाइन खींच रहा हूँ. That means Q के brother or sister I'm writing here. Okay, plus and minus, and P के brother and sister I'm writing on this side. Okay, let's say X and Y. Okay, so brother plus minus and so on.
नाउ पैटर्नल मीन्स पापा की तरफ से रिलेशन. ओके, सो पैटर्नल ग्रैंडफादर, सो दीज आर योर ग्रैंड पेरेंट्स के जनरेशन, और ये पेरेंट्स के जनरेशन. सो ग्रैंड पेरेंट्स के लिए भी अगेन द सेम थिंग. लेट्स से आर एंड एस प्लस एंड माइनस. इफ यू वांट टू डिनोट मैटरनल रिलेशन, उसको थोड़ा सा ऐसे इधर tilted करके you can write down the maternal correlation. Okay, let's say G and H, something like this. Now remember, whenever in the question it says grandfather, so it means paternal grandfather by default. ग्रैंडफादर बोले तो दादाजी यहाँ पे. ओके, बिकॉज वी आर रेफरिंग टू अ फैमिली. अगर मेंशन्ड है स्ट्रिक्टली इट इज मैटरनल, तब जाके यू हैव टू ड्रॉ. अगेन दिस इज ऑप्शनल. अगर कुछ भी नहीं दिया है मैटरनल के बारे में, इट विल बी ऑलवेज बाय डिफॉल्ट पैटर्नल रिलेशंस. ठीक है, सो दिस इज योर फैमिली ट्री. नाउ कैन यू टेल मी, एम जो है ए और बी को क्या बुलाएंगे? फ्रॉम एम इफ यू लुक एट द रिलेशन, दे आर व्हाट? नेफ्यू एंड नीस. ऑलवेज क्लियर. देखो, भांजा या भतीजा, इंग्लिश में इट इज ऑलवेज नेफ्यू, भतीजी इज ऑलवेज नीस. ठीक है. Now, if you look at the relations इस डायरेक्शन में, ए और बी के लिए एम एन एक्स वाई क्या हुए? दे आर अंकल आंटी, अंकल एंड आंट. ठीक है, चाचा, काका, मामा, एवरीवन इज अंकल. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द रिलेशन. Remember this one. Another important point that you need to remember is spouse. Spouse मतलब it is again gender neutral. Spouse से पता नहीं चलता है कि husband है कि wife है. So it may refer husband और wife, ये दोनों के लिए होता है. ठीक है. For example, his spouse. When I'm saying his spouse, it is referring to the wife. When I say her spouse, is referring to husband. ठीक है. So that's it. इतना ही है blood relations में. Now 3 type of question that you will get is, first one is the interpersonal relation. This is the latest one and it is the most important one. Now interpersonal relations क्या होता है? One person is describing a relation of another person. ठीक है. ऐसे कहते हैं ना, looking, pointing at a picture. Ram said he is the father of my son. ऐसे कुछ तो relation रहेगा. So there you will have quotations वाले dialogues, or we normally call it as direct or indirect speeches. Sometimes narration भी बोलते हैं इसको. ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे. ओके, नेक्स्ट इज फैमिली ट्री. तो फैमिली ट्री में certain relations will be given. You will have to draw a relation, something like this. Third one is coded relations. Now coded relations क्या होता है? Relation सीधा सीधा नहीं बोलेंगे. When I say A plus B represents A is the wife of B. तो ऐसा कुछ रिलेशन दिया रहेगा using some signs or operators. So you'll have to draw a family tree again. ऐसे ही डायग्राम बनाना है based on this. ठीक है. So most important one is this one. कुछ भी करो ये वाला प्रैक्टिस करके ही जाना है. You will definitely get questions like this. Okay. Sir, please repeat the second one.
सेकंड इज नथिंग बट फैमिली ट्री, जो ऐसा ड्रॉ करते हैं। थर्ड वाला भी फैमिली ट्री है, बट वन एक्सटेंडेड कॉन्सेप्ट इज गिवन एज कोड। यहाँ पे कोड की तरह दिया रहेगा, से डायरेक्टली दे विल नॉट से, सो दे विल से प्लस का मतलब होता है ए इज द वाइफ ऑफ बी, समथिंग लाइक दिस। माइनस का मतलब होता है ए इज द सिस्टर ऑफ बी। तो ऐसा ही कुछ कोड्स दे रहेंगे, अकॉर्डिंग टू द कोड you will have to decode them into family tree. Okay, so of all these three, सबसे ज्यादा important is the first one, this one. Okay, so I will tell you how to solve these questions. एक टाइप का क्वेश्चन है, same formula everywhere. Okay, so let's go to the question. देखो मैं क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। इफ रामा सेज, रामा, अभी देखो स्पीकर कौन है, रामा है, ठीक है। रिमेंबर, नाम से डू नॉट गेस द जेंडर। रामा बोला है तो रामा मेल ही होगा, इट इज नॉट, सो सॉरी, इट इज नॉट नेसेसरी। ओके, जब तक ऐसा कोई भी क्लू ना मिले जिससे रामा का जेंडर पता चले, तब तक रामा may be male, रामा may be female. Okay, so always remember that. Now, who is the speaker of this statement? इस स्टेटमेंट का स्पीकर कौन है, रामा है। तो इसमें आई, मी, माई, यानी देखो माई बोला है मतलब कौन है ये, रामा फादर, करेक्ट है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। नाउ लुक एट दिस, ये जो कोटेशन के अंदर है इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ट्राई टू सेपरेट इज के पहले वाला अलग, इज के बाद वाला अलग, ठीक है। लुक एट दिस स्टेटमेंट, इज के पहले अलग, इज के बाद वाला स्टेटमेंट अलग। मैंने ऐसा किया। इज का मतलब क्या होता है, इक्वल टू साइन होता है ना। नाउ पहले ये वाला, ऑलवेज ट्राई टू गो इन अ रिवर्स वे, ठीक है। नाउ रिवर्स वे में भी देखो, ऑफ जो है, ऑफ इज नथिंग बट अ ग्रेट सेपरेटर। ये ऑफ के पहले, ऑफ के बाद, ठीक है। जहां जहां कहीं पर ऑफ दिखे ना, उसको अलग अलग कर दो। दी ओनली सन अलग हो जाएगा, माई फादर इन लॉ लक्ष्मण। अब रिवर्स में जाओ, रामा के फादर इन लॉ, उनका नाम क्या है, रामा के फादर इन लॉ, उनका नाम क्या है, इन द क्वेश्चन इट इज गिवन लक्ष्मण। यस, राम के फादर इन लॉ मतलब राम के तो फादर नहीं होंगे, राम के फादर इन लॉ मतलब राम के वाइफ के फादर हो सकता है, या तो राम के हस्बैंड के फादर हो सकते हैं, है ना। मैंने अभी सर रमा है ना वो, हाँ रामा के, हाँ अगेन आई एम टेलिंग यू, रामा का जेंडर अभी तक पता नहीं चला है, उसके बाद हम जेंडर कंफर्म करेंगे। देखो राम के वाइफ के फादर हो सकते हैं लक्ष्मण, है ना, फादर इन लॉ बोला है। या तो सिचुएशन ऐसा भी हो सकता है कि रामा इज द वाइफ एंड रामा के जो हस्बैंड है उनके फादर है लक्ष्मण, ठीक है। सुनने में थोड़ा ऑकवर्ड लगता है बाय द नेम रामा, बट अगेन लॉजिकल रीजनिंग है, हमें इमोशंस या कॉमन सेंस से ही नहीं जाना है, वी हैव टू गो बाय लॉजिक एज वेल, ठीक है। सो ये दो कंडीशंस है, यहाँ पे राम इज मेल, यहाँ पे राम इज फीमेल, ये अभी तक मुझे पता नहीं चला है, ठीक है। नाउ क्या करना है, इसको रिलेशन को कैसे ट्रेस करना, देखो माई मीन्स रामा के वाइफ के फादर, देखो मैं ऐसा रिलेशन ट्रेस करूँ, रामा के वाइफ के फादर, मेरा कर्सर यहाँ पे रुका हुआ है, कहाँ पे, लक्ष्मण में, ठीक है। उसके बाद द ओनली सन, लक्ष्मण के ओनली सन, नाउ फ्रॉम लक्ष्मण आई विल ट्रेस टू ओनली सन,
लक्ष्मण के ओनली सन मतलब रामा के वाइफ के भाई हो सकते हैं, राइट, ब्रदर। एंड इस ब्रदर का इक्वल टू साइन देखो यहाँ पे, इक्वल टू साइन का मतलब क्या है, शारदास फादर भरत, मतलब ये जो है इसका नाम क्या है, भरत, और ये कौन है, शारदा के फादर। ठीक है, ये एक कंडीशन हो सकता है। ठीक है, now if you look at this one, राम being a wife, तो राम के फादर इन लॉ कौन हुए, लक्ष्मण। लक्ष्मण के ओनली सन मतलब राम के हस्बैंड, राइट। नाउ हस्बैंड इक्वल्स टू, हस्बैंड, यहाँ हस्बैंड के बाद इक्वल टू आ गया, देखो भरत, यानी शारदास फादर भरत, शारदा के फादर भरत, है ना। तो मतलब राम विल बी मदर ऑफ शारदा इन दैट केस। ठीक है, दो कंडीशंस हमने देखे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देन हाउ इज रेशमा हु इज सिस्टर ऑफ शारदा। रेशमा जो है शारदा के सिस्टर हैं, ओके, दिस इज रेशमा, लेट मी राइट रेशमा हियर। ठीक है, एंड यहाँ पे रेशमा रिलेटेड टू लक्ष्मण। रेशमा जो है लक्ष्मण के कौन हुए, देखो एक जनरेशन, दूसरा जनरेशन, तीसरा जनरेशन। नाउ इन बोथ द डायग्राम्स राम के जेंडर का रिक्वायरमेंट ही नहीं है, करेक्ट, बिकॉज हमें लक्ष्मण से सीधा रेशमा का रिलेशन पूछा है, तो ये डायरेक्ट फैमिली में आता है दोनों डायग्राम में। तो रेशमा कौन हुए, जो कि सिस्टर है शारदा के, वो लक्ष्मण के कौन हुए, लक्ष्मण के कौन हुए, डॉटर नहीं, ग्रैंड डॉटर, यस। हाँ, ए कैसे आएगा, कैसे आएगा, लक्ष्मण देखो, ग्रैंड डॉटर, हाँ ग्रैंड डॉटर इज द आंसर। ठीक है, क्योंकि ये जनरेशन ही गैप हो गया, देखो एडजस्टेंट जनरेशन नहीं है। शारदा जो है, शारदा के और रेशमा के सेम जनरेशन है, और रामा के जनरेशन शारदा के एक ऊपर वाले जनरेशन है, उससे भी ऊपर लक्ष्मण के जनरेशन है, मतलब जनरेशन ही गैप है। तो मतलब यू फॉलो इन बोथ द डायग्राम्स, योर आंसर इज ग्रैंड डॉटर। ओके, नाउ let me help you with the next question as well. Amit said looking at a painting, कौन बोल रहा है या बोल रही है, अमित। Again I'm telling you, अमित is male female मुझे बिल्कुल पता नहीं है। अमित कहता है या कहती है, I have no brothers or sisters। अमित का ना कोई भाई है ना ही बहन है, मतलब डोंट यू थिंक अमित इज द ओनली चाइल्ड। Yes. अब ओनली चाइल्ड बोला हूं मैंने, ओनली चाइल्ड, अमित इज ओनली चाइल्ड, इससे ये पता चलता है ना कि भाई है ना बहन है, मीन्स ओनली चाइल्ड। अब ये चाइल्ड सन हो सकता है, डॉटर भी हो सकता है। जैसे ही मैंने सुना अमित बोल रहा है, लेकिन ठीक है, अमित बोल रहा है या बोल रही है, His mother is the wife of my father's son। क्या करना है, is का मतलब equal to साइन, ऑफ के पहले अलग, ऑफ के बाद वाला अलग, ये देखो सेपरेट किया। ये माई का मतलब कौन है, अमित। अमित के फादर के सन, अमित का तो ना भाई है ना बहन है, मतलब ये खुद है। जैसे ही मुझे पता चला सन, अमित के फादर के सन, मतलब अमित खुद है ना, क्योंकि अमित के तो ना भाई है ना बहन है, एक ही बच्चा है। सो अमित हिमसेल्फ इज द सन। अब देखो कर्सर मैं कहाँ पे रुका हूँ, मैंने स्टार्ट कहाँ से किया, माई फादर्स ओनली सन, मींस अभी यहाँ तक रुके हैं, उसके बाद कंटिन्यू करता है, ऑफ द वाइफ,
मतलब अमित के वाइफ, ठीक है। वाइफ के जस्ट बाद में इक्वल टू साइन, मींस दिस वाइफ इज इक्वल टू हिज मदर। किसके मदर? वो जो पेंटिंग में कोई तो है, अब हिज बोला है मतलब वो मेल है ना, और इस मेल के मदर जो है इस अमित के वाइफ। तो अमित किसके पेंटिंग को देख रहा था? उसके सन की। यस, आंसर इज सन। वाइफ के सन मतलब क्या हुआ? अमित का ही सन हुआ, है ना। सो ट्राई टू डू द सेम थिंग हियर। इक्वल टू साइन, द ओनली सन, द फादर, माई सिस्टर्स ब्रदर, ये सब अलग अलग करो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस। देखो थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा, बट once you do the practice, things will be very clear. ब्रदर। Brother? यस। Okay. My sister's brother. अब देखो, चित्रा said, ये रहा चित्रा के सिस्टर के ब्रदर के फादर, मतलब चित्रा के भी फादर हुए ना। हाँ। और इस फादर के ओनली सन, फादर के बाद द ओनली सन, भाई हुआ ना। हाँ, मतलब चित्रा भी फीमेल है, तो ये तीनों सिबलिंग्स हुए। अब देखो यहाँ पे कर्सर यहाँ पे स्टॉप कर दिया मैंने, इसके बाद इक्वल टू साइन, देखो इक्वल टू साइन, इक्वल टू ही मतलब जो फोटोग्राफ में पर्सन है ना। तो हाउ इज द पर्सन रिलेटेड टू चित्रा? देखो टू चित्रा बोला है, तो आपको रिलेशन चित्रा के तरफ से देखना है। तो चित्रा के कौन हुए? अंकल, ब्रदर हुए ना। हाँ वो मतलब हाँ ठीक। हाँ, सेम जनरेशन पे है तो ब्रदर है, करेक्ट। अंडरस्टूड ना मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ? सेम रूल अप्लाई करो हर क्वेश्चन में। क्या रूल है? इक्वल टू साइन, इज के जगह इक्वल टू साइन, द ओनली सन, ऑफ की जगह सेपरेट करना है। ऑफ इज दी नथिंग बट ग्रेट सेपरेटर। सर लास्ट में बताओ ना, लास्ट में कैसे करें? सर मुझे लगा कि वो पर्सन जो है मतलब वो जो सिस्टर ब्रदर के फादर, उनको पर्सन मतलब पॉइंट किया है। हाँ, तो ये देखो कैसा मैंने ट्रेस किया। पहले इसको लिखा मैंने माई सिस्टर ब्रदर, माई मतलब कौन है? चित्रा, है ना। चित्रा के सिस्टर के भाई। मेरा ये जब मैंने कंप्लीट किया तो मेरा कर्सर यहाँ पे रुका, फिर मैंने नेक्स्ट कंटिन्यू किया। द फादर, ऑफ के बाद द फादर, भाई के फादर, है ना। फादर के ओनली सन, मतलब वो ब्रदर ही है। ओनली सन मतलब एक ही बेटा है ना, तो वो चित्रा के भाई होंगे, है ना। जैसे मेरा ये वाला खत्म हो गया, मैंने इक्वल टू साइन से रिप्लेस कर दिया। इक्वल टू के उस पार कौन है? ही का मतलब कौन है? जो फोटोग्राफ में पर्सन है। ये कौन है? फोटोग्राफ के अंदर जो पर्सन है, दैट इज दिस पर्सन। ये तो सेम। अंडरस्टूड? यस सर। तो सारे क्वेश्चंस में आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। सो 4-5 और क्वेश्चंस मिलेंगे आपके बुक में, ट्राई टू कंप्लीट दोज क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट इज द फैमिली ट्री।
बाय द वे दिस इज द फर्स्ट टाइप, इंटरपर्सनल रिलेशन जो मैंने बोला था, ठीक है। सो दिस इज इंटरपर्सनल रिलेशंस। यही इंपॉर्टेंट है, सबसे मेन यही है। अगर इसके 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो तो बाकी के 10-10 किया तो भी चलेगा, बट यू शुड ऑलवेज प्रैक्टिस दिस क्वेश्चंस थॉरोली। यही क्वेश्चंस आएगा, ओके, नॉट एग्जैक्टली द सेम क्वेश्चन बट यही सेम टाइप। So family tree, how does questions on family tree look like? So family tree, as I said, certain statements will be given. So based on that statement, you have to draw the family diagram. Family diagram कैसे लिखना है? Generation 0, Generation 1, Generation 2. ये आपका generation है, the current generation. So let's start from any statement. ऐसे कितने लोग हैं? A, B, C, D, E, F and G. There are 8 people, right? 8 या 7 है? 7. There are 2 married couples. अच्छा, 2 married couples हैं, तो मतलब बाकी 3 unmarried हैं. 2 married couples means 4 people. G is the housewife. अच्छा, इतना confirm हो गया है. I'll write the detail here, जो given है. When I say G is housewife, means G must be female, है ना? और G के husband जो है वो lawyer है. ये जो भी रहेगा वो lawyer है. Now G का profession is not known to us. G पता नहीं क्या है. C is the wife of B. अच्छा, दूसरा couple कौन है? C is the wife of B, means B, C, यानी C is female, B is male, so they are couple. So ये मिल गया. A is an engineer and is a granddaughter of G. कुछ समझ में आ रहा है यहाँ पे? A जो है G के granddaughter है, मतलब A कौन से generation पे आएगा फिर? G2. G2, correct, perfect. So A जो है is an engineer and is the granddaughter. Can you tell me A का gender क्या है? Girl. Yes. G दादी है ना सर? हाँ, G is the दादी. ओके, तो मतलब A अगर engineer है तो A के जो grandfather हैं वो lawyer हैं, because G के husband lawyer हैं. Now D is the father-in-law. D is the father-in-law of C. अब मुझे बताओ, D father-in-law है C के. अगर मैंने C को इस जनरेशन पे बैठाया, ठीक है, C को इस जनरेशन पे बैठाया, तो father-in-law मतलब D यहाँ पे आएगा. अब D father-in-law है मतलब मेरे पास 3 मैरिड कपल्स आ जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है देयर आर 2 मैरिड कपल्स, तो मतलब D शुड बी इन द जनरेशन 0, है ना? तो अब और तो कोई है नहीं, तो D मस्ट बी द लॉयर एंड इज द फादर इन लॉ ऑफ C. C के फादर इन लॉ है मतलब B प्लस एंड C माइनस इन द जनरेशन नंबर 1. सो फादर इन लॉ है मतलब ऐसे जाएगा रिलेशन, करेक्ट? D इज द फादर इन लॉ ऑफ C, अ डॉक्टर. डॉक्टर कौन है? C. तो इफ C इज अ डॉक्टर, कैन यू टेल मी व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ D? D का प्रोफेशन क्या है? इट इज ऑलरेडी गिवन, लॉयर. हमने ये इधर फाइंड किया ना, G के हस्बैंड इज लॉयर. नाउ एंड फादर ऑफ E. D जो है फादर, C के फादर इन लॉ है, लेकिन E के तो फादर है, तो E जो है B के भाई. कौन हुए? इट मे बी अ ब्रदर और सिस्टर. E के पापा हैं D,
लेकिन ई जो है डी के सन है, डॉटर है, इट इज नॉट गिवन, तो इसलिए मैंने जेंडर दोनों स्पेसिफाई किया है। एंड ई इज अ प्रोफेसर। एफ इज ब्रदर। ए कहाँ पे है? एकदम नीचे वाले जनरेशन में। ए के भाई हैं एफ, राइट, तो एफ का जेंडर इज मेल। एंड बी के सन है, तो ए एंड एफ बोथ आर सन ऑफ बी, बी एंड सी। अब स्टिल, डू यू नो द जेंडर ऑफ ई? बाय एनी चांस डू वी हैव द जेंडर ऑफ ई? कहीं से भी? So from all the statement we cannot define any gender because यहाँ पे भी mention नहीं है, right? उसने बोला है कि 2 मैरिड कपल्स हैं। 2 मैरिड कपल कौन कौन है? ये, ठीक है। और बचे हुए 3 जो है, कितने मेल है कितने फीमेल है, इट इज नॉट गिवन। So 1 male and 1 female is confirmed, but E का gender is not known. How F is related to C? Now 2C बोला है, तो C के तरफ से देखो रिलेशन। C के कौन लगते हैं F? आंसर इज सन। How B is related to E? रिलेशन E के तरफ से देखना है। E क्या बुलाएंगे B को? ब्रदर। ब्रदर, ठीक है। Who is lawyer? लॉयर कौन है? D. Clear? So सेम टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। ओके, सो आई थिंक वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। सो मंडे को लेट अस सॉल्व फ्यू मोर एग्जांपल्स, उसके बाद ब्लड रिलेशनशिप इज डन। सो वी आर लेफ्ट विद आई थिंक डायरेक्शंस बचा हुआ है, एंड देन अरेंजमेंट विल टेक वन एंटायर सेशन। ये 2 hours आराम से लग जाएंगे। Directions will take hardly 1 hour. Okay, then we are left with clocks, calendars. This will take another 2 hours. And then और कौन सा बचा है? Directions, series, coding, decoding. ये तो एक ही फॉर्म, मतलब इसके लिए कोई बेसिक फॉर्मूला है नहीं। वी विल डिस्कस ऑल द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। ये हो गया, और क्या बचा है? कलरिंग क्यूब्स एंड डेटा सफिशिएंसी। ये तीनों इट विल टेक नियर अबाउट 2 hours। कलरिंग क्यूब्स अगेन वेरी सिंपल है। डेटा सफिशिएंसी ऑल्सो इट विल हार्डली टेक 10 minutes। One rule applicable to all. Calendar also. हाँ, clocks and calendars के लिए it will take around 2 hours, क्योंकि उसमें समझाने में ही बहुत टाइम चला जाता है। Okay, so maybe by Thursday we can wind up. Thursday or Friday. हाँ, उतना चला जाएगा। It depends upon how you can adjust with the pace। ठीक है, देखते हैं कितना होता है। जितना होगा विल कवर। ठीक है, लेट्स सी इफ वी कैन कवर दिस 2 on Monday। थोड़ा मुश्किल लग रहा है बट विल ट्राई। ठीक है, सी कहने को तो रीजनिंग इज वेरी सिंपल, एक एक टाइप ही होता है क्वेश्चंस, बट अगेन जल्दी जल्दी मैं खत्म नहीं करना चाहता। सो okay, so give me few minutes, I'll quickly take your attendance आज वैसे भी बहुत कम है। Today is 13th।
Okay, we were supposed to complete in 20 sessions. We might reach to 24. Okay, no problem in that. Okay. Okay. Ali, you there? Not responding. Dipali is there? Okay, Dipali is there. Present, sir. Hello, sir. Can you mark my attendance? Yes, yes. Can I leave? Yes, yes. IPL is calling, huh? No, sir. Dinner is waiting. Okay, okay, no problem. Sejal? Sejal is not responding. Then it's Rohan Jadhav. Yes, sir. And Aparna is there, no? Present, sir. Okay, then Lakhan Rathore is not here today. Okay. Okay, Shailesh not responding. Pranay responding. Present, sir, present. Okay, okay. And Abhishek Patil not responding. Asir is present. Divya Pawar not responding. Upendra Yes, sir. Upendra. Chal Jadhav absent. Neil is present. Shivam Sirsagar. Shivam, you often join the session but never respond. Amini, Yes, sir. Rasika, Shreya, Sonali Kaple, Yes, sir. Tejas, Sakshi, then Pooja, Present, sir. Manish Gaikwad, Suraj, Yes, sir. Present. Kalyani, Present, sir. Manoj Gulve, Present, sir. yes, Suraj updated, and then Shubham Gupta. Aarti, Arul, Rohit Das, Present, sir. Kaveri, Present, sir. Subhada, Present, sir. Sonali Sable, Yogita, Sonali Bagre, Priti, Present, sir. Kiran, Rakesh Wagh present. Okay. Your Sheikh? Yes, Rakesh, updated. Sir. Sir, I'm present, sir. Suraj Parke. Yes, Suraj updated. Your Sheikh? Mahesh Nemane? Ina? Akshada? Present, sir. Kanchan? Present, sir. Srikanth? Acha, Srikanth is present. Shubham Jadhav? Amrita? Akash, then we present. Abhishek Mate?
Okay. Yes, Namrata updated. Vishak Mate is absent. Okay, done. Sanjana Jadhav, just a minute. I'll update quickly. सर मुदस्सिर को लगाओ क्या? Yes, Mudasir, marked. ओके Okay, done. Thank you so much, everyone. See you on Monday. Have a nice week.